तलबा और तालबात फ़ारूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा निसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली नई तालीमी वीडियोस आपको मिल सके। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, ऑनलाइन स्कूल से आप मुकम्मल तालीम हासिल करके बोर्ड का इम्तहान बराए जमात नहम व दहम बेहतर तौर पर पास कर सकते हैं। आप अपनी उम्र और तालीम के मुताबिक मज़ीद तालीम हासिल करें। वालिदैन से फ़ोन या कंप्यूटर पर हमारी वीडियोस के ज़रिए तालीम हासिल करने की दरख्वास्त करें। रोज़ाना 1 से 2 घंटे ऑनलाइन पढ़ाई करें और जब आप स्कूल जाएंगे तो आपको मज़ीद किसी मदद की ज़रूरत नहीं होगी। इस तरह पढ़ाई करके अपना वक्त और वालिदैन के अखराजात में बचत कर सकते हैं। ऑनलाइन स्कूल की कोई फ़ीस नहीं है। आप जूम पर भी क्लासेस का फ़ायदा उठा सकेंगे। हर मज़मून की मुकम्मल तालीमी वीडियोज़ मौजूद हैं। Students, I am taking all these contents of this chapter from the Punjab textbook board. In previous lecture, we discussed about the unit number 5, Daffodils, written by William Wordsworth, 1770 to 1850. Now I am going to give you some brief introduction about the poem and the poet. William Wordsworth was born at Cockermouth in Cumberland, April 7, 1770. His passion for nature is well known. That is why he is referred as the poet of nature. Wordsworth is a true worshipper and ardent lover of nature. It was a creed for him. According to him, nature is a teacher and preacher. In this poem, the poet has represented before us the healthy, ennobling, purifying and enduring impact of nature on the human beings. We probably have moments in our life that we replay in our memory, images to which photographs or videos cannot do justice because they cannot capture our feeling. In this poem, William Wordsworth captures both the images and feelings concerned to a special moment in his life. The poem is a tribute to nature and its manifestation in all its glory. It beautifully presents before us not only the attractive and exciting beauty of nature but also the purifying and enduring impact of it on the human being. William Wordsworth is a poet of nature. He portrays the beautiful scenes of nature in a very attractive and striking manner. In this simple and beautiful poem, he describes a pleasant experience of his life. One day he was passing by a lake. Suddenly he saw a large number of golden daffodils along the side of the lake. They were moving and dancing with joy. They were shining like the stars on the Milky Way. The waves of the lake were also dancing along with the daffodils, but the daffodils surpassed the waves of the lake. The poet went on looking at them for a long time. He was fascinated to see this beautiful scene of nature. This scene was imprinted on his memory. The poet remembers this charming scene whenever he lies in his couch in vacant or in a thoughtful mood. It has become a blessing in his loneliness. His worries decreases and his heart is filled with pleasure at the memory of those beautiful flowers. So this was a brief introduction about the daffodils. Now we move on to the exercise. First one is glossary. Glossary means difficult words about the chapter or poem and their meanings or synonyms. First one is fluttering. Fluttering means झूलते हुए and synonym moving in the air or flying. Glee. Glee means joy or happiness. Host बड़ी तादाद में in large number great gathering. Jocund खुश होना joyous happy. Twinkle झिलमिलाना shine repeatedly और blink. Pensive अफसुर्दा होना thoughtful और sad. Solitude तन्हाई loneliness. Next one गाइडलाइन टू प्रिपेयर प्रेजेंटेशन। बेटा इसके अंदर एक प्रेजेंटेशन देने का तरीका बताया गया कि आप कैसे किसी चीज़ को प्रेजेंट कर सकते हैं किसी के सामने, या आपकी ओरल एक्टिविटी आप इसको कह सकते हैं। ठीक है। फर्स्ट वन इज़ कंटेंट। आप किसी भी चीज़ को
प्रेजेंट कर रहे हो तो आपको सबसे पहले कंटेंट देखना होता है कि कंटेंट कैसा है, मवाद कैसा है, जो आप इन्फॉर्मेशन लोगों को बताने जा रहे हैं वो कैसी है। उसके लिए 3 स्टेप्स बताए गए हैं। फर्स्ट वन, प्रोवाइड एडिक्वेट बैकग्राउंड ऑफ द टॉपिक, कि जो टॉपिक आपने सेलेक्ट किया है उसका प्रॉपर और अच्छा बैकग्राउंड होना चाहिए। एक्सप्लोर टॉपिक इन सफिशिएंट डेप्थ, आपको उस टॉपिक की गहराई के बारे में पता होना चाहिए। अप्रोप्रिएट कंक्लूजन, और आपको नतीजे के बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट वन, प्रेजेंटेशन, आप प्रेजेंटेशन कैसे देंगे वो पॉइंट्स। इंट्रोडक्शन ऑफ द टॉपिक ब्रीफली एंड क्लियरली, आप जिस टॉपिक को बताने जा रहे हैं सबसे पहले आप उसका इंट्रोडक्शन दें कि वो है क्या, ठीक है। वो इंट्रोडक्शन ब्रीफ होना चाहिए और क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट वन, सपोर्टिंग फैक्ट्स एंड एग्जांपल्स, जो आप डाटा लोगों के सामने इंफॉर्मेशन रखने जा रहे हैं उसको एग्जांपल्स के साथ और फैक्ट्स यानी कि हकाइक के साथ लोगों के सामने रखें ताकि वो आपकी बात को समझें। नेक्स्ट वन इज़ ऑर्गेनाइजेशन, आप तरतीब कैसे देंगे अपनी टॉपिक के अंदर, जो पॉइंट्स हैं उनको कैसे तरतीब देंगे। फर्स्ट वन, स्टेट ऑब्जेक्टिव वेल्स, कि आपके ऑब्जेक्टिव्स, आपके मकासद आपको पता होने चाहिए। कवर मेजर एरियाज़ ऑफ द टॉपिक, जो टॉपिक के इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं उनको कवर करें कि एक टॉपिक के अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट पार्ट्स आ सकते हैं। ऑर्गेनाइज प्रेजेंटेशन इन अ प्रॉपर सीक्वेंस, एक मुनासिब तरतीब होनी चाहिए, ये नहीं कि लास्ट वाली चीज़ उठाकर पहले लिख दें और पहले वाली जो चीज़ थी उसको लास्ट पर ले आएं। नेक्स्ट वन, मैनेज टाइम वेल, टाइम की मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है प्रेजेंटेशन के अंदर। आपको प्रॉपर टाइम के अंदर अपने टॉपिक को वाइंड अप करना होता है। नेक्स्ट वन इज स्टाइल, आपका स्टाइल क्या होना चाहिए प्रेजेंट करते हुए, जब आप लोगों को बता रहे हैं आप किस स्टाइल के साथ बताएंगे। फर्स्ट वन, स्पीक विद कॉन्फिडेंस एंड अलर्टनेस, आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपकी आवाज़ के अंदर कि दूसरे आपकी बात को समझ सकें। नेक्स्ट वन, प्रॉपर यूज़ ऑफ ऑडियो और वीडियो विजुअल एड्स, ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करें जैसे कि पिक्चर्स का इस्तेमाल कर लें, आप उनको कोई रिकॉर्डिंग सुना दें, कोई वीडियो दिखा दें, तो ये होते हैं AV एड्स यानी कि ऑडियो विजुअल एड्स, उनके ज़रिए लोग समझने में आसानी होती है। नेक्स्ट वन, यूज़ बॉडी लैंग्वेज, आप जब फिज़िकली लोगों के सामने प्रेजेंट कर रहे हैं तो आपकी बॉडी लैंग्वेज पॉजिटिव होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। नेक्स्ट वन, कंडक्ट क्वेश्चन आंसर सेशन, लास्ट पर आप क्वेश्चन आंसर सेशन रखें थोड़ी देर के लिए जिसमें लोग आपसे क्वेश्चन कर सकें ताकि जो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है वो आप जो उनको समझ नहीं आ रही वो क्लियर करें अपनी बात को, ताकि बात जो है बेहतर तरीके से उन तक पहुंच सके। तो ये बेटा सारे स्टेप जो थे ये प्रेजेंटेशन को बेहतर बनाने के लिए बताए गए हैं कि अगर आप कभी प्रेजेंटेशन दें तो आपको इन पॉइंट्स को फॉलो करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कंप्रीहेंशन स्टार्ट हो रही है यहाँ से कि कंप्रीहेंशन में फर्स्ट वन क्वेश्चन है कि आप क्वेश्चंस के आंसर दें। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोइम, इस पोइम का मरकज़ी ख्याल क्या है या सेंट्रल आइडिया क्या है। सो द आंसर इज़ द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोइम इज़ लव फॉर नेचर विच इज़ फुल ऑफ वंडरफुल साइट्स, कि इसके अंदर नेचर के बारे में बताया गया कि फितरत से मोहब्बत कैसे की जाती है जो कि मुख्तलिफ हज़ारों किस्म के हैरत अंगेज़ नज़ारों से भरी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डू द डैफोडिल्स रिप्रेजेंट इन द पोइम, डैफोडिल्स जो हैं वो इस नज़म में किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो द आंसर इज़ द डैफोडिल्स रिप्रेजेंट द अट्रैक्टिव एंड एक्साइटिंग ब्यूटी ऑफ नेचर एंड द इम्पैक्ट ऑफ इट ऑन ह्यूमन बींग, कि डैफोडिल जो है वो कुदरत की पुरकशिश और पुरजोश खूबसूरती और इंसानों पर उसके असर को जाहिर करते हैं। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट वेल्थ डू मेमोरीज ऑफ द सेंस गिव टू द पोइट, कि जो मंजर है उसकी यादें शायर को किस किस्म की दौलत से माला माल कर देती हैं। सो द आंसर इज़ द मेमोरीज ऑफ द सीन गिव टू द पोइट द वेल्थ ऑफ बोथ द इमेजेस एंड फीलिंग्स कंसर्न टू स्पेशल मोमेंट्स ऑफ लाइफ इन पोइट्स लाइफ, इसमें ख़ास लम्हात से वाबस्ता जो कुदरत की या फितरत की तस्वीर और जज्बात की दौलत से शायर को माला माल कर देती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, लिस्ट द वर्ड्स दैट हाइटन द साउंड इफेक्ट इन द पोइम, ऐसे अल्फाज को तरतीब दें जो कि इस पोइम के अंदर सोती असरात को बढ़ा रहे हैं, यानी कि जो कि ऐसे अल्फाज जो कि जिनसे आवाज़ जो है लाउड होती है, प्रोनाउंस होती है। फर्स्ट वन इज़ क्लाउड, हिल, डैफोडिल्स, ट्रीज, ब्रीज, शाइन, लाइन, वे, बे, ग्लैंस, डांस, थॉट, बॉट, लाई, आई, मूड, सॉलिट्यूड, फील्स, डैफोडिल्स, बेटा सारे वर्ड्स जो हैं ये आवाज़ को बढ़ाकर इनको बोलना होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, हाउ हैज़ द पोइट हाइटन द इम्पैक्ट ऑफ द पोइम बाय यूजिंग द फिगरेटिव लैंग्वेज,
हाँ जी, फिगरेटिव लैंग्वेज को इस्तेमाल करते हुए जो शायर है वो कैसे इस नज़म के असर को बढ़ा रहा है। द पोइट हैज़ हाइटन द इम्पैक्ट ऑफ द पोइम बाई यूजिंग सिमिलीज, सबसे पहले सिमिली को इस्तेमाल कर रहा है, मेटाफर्स को यूज़ कर रहा है, इमेजरी को यूज़ कर रहा है और पर्सोनिफिकेशन। ये 3-4 चीज़ें जो हैं ये किसी भी बात की तासीर को बढ़ा देती हैं। ये क्या होती हैं ये हम आगे पढ़ेंगे डिटेल में इन चीज़ों के बारे में। नेक्स्ट, फिगर ऑफ स्पीच also रिलेटेड टू द कॉम्प्रीहेंशन, कि जब हम कोई बात कर रहे होते हैं तो उसके कौन कौन से हिस्से हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको कहा पिछले क्वेश्चन में कि हम अभी पढ़ते हैं सिमिली, मेटाफर और इमेजरी वगैरह के बारे में, तो हम यहाँ पर पढ़ने लगे हैं। फर्स्ट वन इज सिमिली। सिमिली इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच लाइक और एज इज यूज टू मेक अ कंपेयर बिटवीन टू आइडियाज़ दैट आर बेसिकली डिसिमिलर, कि कोई भी दो ऐसे आइडियाज़ जो कि या ख्यालात जो कि बुनियादी तौर पर मुख्तलिफ हों, उनका मवाजना करने के लिए एज़ या फिर लाइक का वर्ड इस्तेमाल किया जाता है। एग्ज़ाम्पल दी गई है बेटा, यहाँ पर देखें, हर आइज़ ट्विंकल्ड लाइक स्टार्स। देखें लाइक का वर्ड जो है वो सिमिली के तौर पर यानी कि मुशाबत के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है कि उसकी आंखें ऐसे जगमगा रही हैं जैसे सितारे जगमगाते हैं। ठीक है, तो देखें सितारों से तशबीह दी जा रही सिमिली के तौर पे। शी वॉज एज बिजी एज अभी, यहाँ पर एज का वर्ड जो है वह सिमिली के तौर पर यूज़ किया जा रहा है। नेक्स्ट वन इज़ मेटाफर। व्हाट इज़ मेटाफर? इफ़ वी राइट अ कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स एंड ओमिट द वर्ड लाइक दे आर यूजिंग अ मेटाफर। वो कह रहे हैं कि अगर हम किसी दो चीज़ों के दरमियान में का मुवाजना करें और उनमें से लाइक या फिर एज़ का वर्ड हटा दें, बल्कि डायरेक्ट किसी चीज़ को उससे तशबीह दे दी जाए, तो वो मेटाफर होता है। सिमिली के अंदर तो हम लाइक या फिर एज़ का वर्ड इस्तेमाल करते हैं ना, या जैसे का वर्ड इस्तेमाल करते हैं कि उसकी आंखें ऐसे चमक रही हैं जैसे सितारे चमकते हैं, जबकि हम अगर मेटाफर कहेंगे तो हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि उसकी आंखें जो हैं वो सितारे ऐसे चमक, उसकी आंखें जो हैं वो सितारों जैसी हैं, ऐसा कह सकते हैं। तो देखें यहाँ पर जो लाइक या फिर एज़ का वर्ड हमने यहाँ से हटा दिया तो ये मेटाफर होगा। एग्जाम्पल देख लें, ही प्रूव्ड अ लाइन इन द फाइट। देखिए यहाँ पर उस शख्स को लाइन से तशबीह नहीं दी गई, लाइक या फिर एज़ का वर्ड नहीं यूज़ किया गया, बल्कि डायरेक्ट इसको लाइन कह दिया गया कि वो लड़ाई में शेर साबित हुआ या शेर की जैसे लड़ा। हिज हार्ट इज़ रेड रेड रोज़, उसका दिल जो है वो सुर्ख गुलाब है। तो देखें यहाँ पे डायरेक्ट उसके हार्ट को रेड रोज से तशबीह दे दी गई है, तो ये मेटाफर होता है। नेक्स्ट वन इज़ पर्सोनिफिकेशन। व्हाट इज़ पर्सोनिफिकेशन? It is a figurative language technique where an object or idea is given hint, characteristics और qualities। हाँ जी, यहाँ पर क्या होता है बेटा कि फिगरेटिव लैंग्वेज वो होती है जिसमें हम किसी भी चीज़ को इंसानी खसूसियात दे दी जाती हैं किसी भी चीज़ की। ठीक है, जैसे कि द कैंडल फ्लेम डांस्ड इन द डार्क, तो डांस जो है वो इंसान या कोई जिंदा चीज़ कर सकती है। तो देखिए कैंडल के फ्लेम को क्या कह दिया कि वो डांस कर रहा है, तो उसको किससे तशबीह दे दी है? इंसानी चीज़ से या इंसानी खसूसियत से। द सनफ्लावर नोडेड इन द विंड, जैसे इंसान जो है सर हिला सकते हैं वैसे ही सनफ्लावर को क्या कह रहे हैं, वो नोड कर रहे हैं। इमेजरी। इमेजरी क्या होता है? इमेजरी इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ डिटेल्स यूज टू क्रिएट मेंटल इमेजेस इन द माइंड ऑफ द रीडर थ्रू द विजुअल सेंस एज वेल एज द सेंसेस ऑफ टच, स्मेल, टेस्ट एंड साउंड। वो कह रहे हैं कि ऐसी शक्ल होती है जिसके अंदर हम देखने, छूने, सूंघने या चखने के हवाले से ऐसा खाका बना देते हैं लोगों के जहन में कि पढ़ने वाले के जहन में खुद ब खुद ही कोई इमेज बन जाता है। इसलिए इस वर्ड को इमेजरी कहा गया है कि शायर जो है या ऑथर जो है वो ऐसे ऐसे वर्ड्स इस्तेमाल करता है कि पढ़ने वाले को लग रहा था जैसे वो चीज़ें हमारे सामने घूम रही हैं या हमारे सामने मौजूद हैं, उसको इमेजरी कहते हैं, यानी कि वो तसव्वुर कर लेते हैं उन चीज़ों का। फॉर एग्ज़ाम्पल विजुअल, देखने में, ह्यूज ट्रीज इन द थिक एंड डार्क फॉरेस्ट। अब ये लाइन ऐसे लिखी गई है कि बड़े और घने दरख्तों से भरा हुआ जंगल, तो हमारे फ़ौरन दिमाग में आ गया कि कैसे हो सकता है वो, क्योंकि हमने देखा हुआ है वो। ठीक है, ऑडिटरी, कानों से सुनने की कैसे होगा? द रसलिंग ऑफ लीव्स, पत्तों की सरसराहट। देखें अब उसने तो सिर्फ लफ्ज़ लिखा है लेकिन हमारे फ़ौरन इमेज बन गया कि पत्तों की सरसराहट की आवाज़ कैसी हो सकती है, हमें पता है। स्मेल, स्मेल देखें बेटा, सेंट ऑफ एप्पल्स, सेबों की खुशबू। तो हमारे सामने तो अभी सेब मौजूद नहीं है लेकिन फ़ौरन हमारे दिमाग में एक इमेज बन गया कि कैसी हो सकती है वो खुशबू। ठीक है, टेस्ट, स्वीट एंड जूसी ऑरेंजेस, यानी कि मीठे और रसदार ऑरेंजेस। टच, रग्ड एंड रफ पाथ, ख़राब और नाहमवार रास्ता। तो हमारे सामने इस वक्त मौजूद नहीं है वो नाहमवार रास्ता, लेकिन हमारे दिमाग में फ़ौरन से इमेज बन गया कि वो किस किस्म के रास्ते की बात कर रहे हैं। ठीक है,
तो इससे कहते हैं इमेजरी। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन बी also related to this figure of speech. In daffodils, similes are used in stanza 1 and 2. Can you tell what two things are compared to in each of these stanzas? वो कह रहे हैं daffodils के जो 1 और 2 स्टैंजा हैं उनके अंदर दो चीज़ों का मुवाजना किया गया, कंपेयर किया गया। तो आप बता सकते हैं किस चीज़ का मुवाजना किया गया? तो बेटा आंसर है इन स्टैंजा 1 पोइट कंपेयर हिमसेल्फ विद द क्लाउड। पोइट ने खुद को क्लाउड से दिया, सिमिली किया है। और स्टैंजा 2 के अंदर पोइट कंपेयर्स डैफोडिल्स विद द स्टार, डैफोडिल्स को स्टार से रिप्रेजेंट किया या फिर कंपेयर किया। नेक्स्ट क्वेश्चन सी, also related to the comprehension or figure of speech. Pick out one example of personification from the poem. इस पोइम में से कोई एक personification ढूंढें। तो हमने स्टैंजा 3 में से ढूंढी है कि अ गर्ल हु डांस, ठीक है, तो यहाँ पर personification यूज़ की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन डी, also related to the figure of speech. Here is a list of few similes, metaphor and personification. Can you identify them? Write S for simile, M for metaphor and P for personification. वो कह रहे हैं कि एक लिस्ट दी गई है, यहाँ पर ये सारे लिस्ट दी गई है और इनमें से आपने सिमिली, मेटाफर और पर्सोनिफिकेशन को आइडेंटिफाई करना है, ढूंढना है कि कौन सा क्या है, ठीक है। और पर्सोनिफिकेशन के सामने P, मेटाफर के सामने M और सिमिली के सामने S लिख देना है। फर्स्ट वन इज़ टाइम इज़ मनी। टाइम जो है वो मनी है, डायरेक्ट कह दिया गया। देखें टाइम को मनी से तशबीह नहीं दी गई बल्कि डायरेक्ट कह दिया कि वो मनी है, तो ये मेटाफर है। नेक्स्ट वन एज बी, एज बिजी, एज बी ये हम पीछे कर चुके हैं कि ये सिमिली है, एज का वर्ड यूज़ हो गया है। द विंड विस्पर्ड द रूमर्स ऑफ द रेस्ट, तो ये पर्सोनिफिकेशन है। द एप्पल ऑफ माई आई, डायरेक्ट बात कह दी गई है, मेटाफर है। एज कनिंग एज अ फोर्स, तो देखें यहाँ पर एज का वर्ड यूज़ किया गया है तो ऑब्वियसली सिमिली होगा। ब्राउन ग्रास वॉज बेगिंग फॉर वाटर, तो देखें यहाँ पर पी आएगा यानी कि पर्सोनिफिकेशन बयान की गई है। एज जेंटल एज अ लैम्प, एज का वर्ड यूज़ हो गया तो ऑब्वियसली एस लिखेंगे हम, सिमिली है। द सॉरी इंजन वीज्ड इट्स डेथ कफ, तो देखें यहाँ पर इंजन है, एक नॉन लिविंग थिंग है, लेकिन उसको किस चीज़ से, डेथ कफ यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म से उसकी खसूसियत से तशबीह दे दी गई है, तो पर्सोनिफिकेशन के लिए पी का वर्ड यूज़ करेंगे। द हार्ट ऑफ लाइन, यहाँ पर मेटाफर है, डायरेक्ट उसको लाइन से कह दिया गया कि हार्ट ऑफ लाइन। एज वाइज एज एन ऑल, एज का वर्ड यूज़ हुआ है तो सिमिली आएगा। ब्लैंकेट ऑफ स्नो मेटाफर। एज ब्लैक एज अ क्रो, एज का वर्ड है तो एस आएगा यानी कि सिमिली। नेक्स्ट क्वेश्चन एफ, विच इमेजरी द पोइट रेफर टू इन द पोइम। हाँ जी, शायर ने इस पोइम के अंदर किस चीज़ को इमेजरी के तौर पर यूज़ किया है, तो हम देख लेते हैं। द मोस्ट नोटिसेबल विजुअल इमेजरी द पोइट रेफर टू in the poem is 10,000 I saw daffodils, I saw I at a glance. The poet vividly described the beauty of this sight by using simile, metaphor and personification. The reader feels as he were seeing those beautiful daffodils with his own eye. देखें ज़रा, शायर ने कहा है कि 10,000 जो डैफोडिल्स थे मैंने एक ही नज़र में देख लिए। शायर यहाँ पर तशबीहात, इस्तारा और तस्सीम इस्तेमाल करके इस मंज़र की खूबसूरती को वाज़ेह तौर पर बयान करना है कि पढ़ने वाला महसूस करता है कि वो ये मंज़र अपनी आँखों से देख रहे हैं, ठीक है। तो देखें जो चीज़ अपनी आँखों से ऐसा महसूस हो जैसे हम अपनी आँखों से देख रहे हैं उसको हम इमेजरी कहते हैं। तो यहाँ पर इमेजरी के तौर पर उसने ये वर्ड यूज़ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ वोकैबुलरी। फर्स्ट A, use a thresher to find 3 more equivalent और synonyms to the following words। वो कह रहे हैं कि यहाँ पे वर्ड्स दिए गए हैं, आपने इनके बराबर के मीनिंग्स यानी कि synonyms यहाँ पर fill in the blanks में लिखने हैं। So the first one is saw, glance और gaze। तो यहाँ पर इनके मीनिंग लिखे गए हैं, synonym लिखे गए हैं look, behold और watch, ठीक है। gaze का watch आएगा, glance का behold आएगा और saw का look आएगा। नेक्स्ट shine, shine mean glow, twinkle, glitter and sparkle, flare. Next is connotation. What is connotation? Connotation means the attitude and feeling associated with opposed to its literal meaning. हाँ जी, दो ऐसे वर्ड्स जो कि दिखने में तो उनका मीनिंग तो तकरीबन एक जैसे हों लेकिन उनकी वाइब जो है वो अपोजिट हो। एक वर्ड जो है वो पॉजिटिव इम्पैक्ट दे रहा हो और दूसरा जो है वो नेगेटिव इम्पैक्ट दे रहा हो, यानी कि उनके मीनिंग तो तकरीबन मिलते जुलते हैं लेकिन एक वर्ड जो है वो हम नेगेटिव चीज़ों के लिए बोलते हैं और एक वर्ड हम पॉजिटिव के लिए बोलते हैं। तो हम देख लेते हैं यहाँ पर
जैसे कि एग्जांपल दी गई है सॉलिट्यूड। सॉलिट्यूड बेटा तन्हाई है, और लोनली का मतलब भी तन्हाई होता है, अकेलापन। लेकिन सॉलिट्यूड का वर्ड जो है वो पॉजिटिव कोनोटेशन है, यानी कि हम पॉजिटिव वर्ड्स या फिक्रे जब लिख रहे होते हैं तब हम सॉलिट्यूड का वर्ड इस्तेमाल करते हैं, जबकि लोनली का वर्ड जो होता है वो सैडनेस की तरफ आ जाता है, तो यहाँ पर हम नेगेटिव कोनोटेशन में इस्तेमाल करते हैं उसको। रिलेटेड टू द कोनोटेशन यहाँ पर एक एक्टिविटी दी गई है, देख लेते हैं हम उसको। फर्स्ट वन इज़ गेज और स्टेयर। हमने यहाँ पर इन दोनों में डिफरेंस करना है, स्पेसिफाई करना है कि पॉजिटिव कौन से हैं और नेगेटिव कोनोटेशन कौन से हैं। फर्स्ट वन इज़ गेज। गेज का मतलब भी घूरना होता है, और स्टेयर का मतलब देखना होता है। तो देखें मीनिंग दोनों के तकरीबन एक जैसे हैं, ठीक है, लेकिन एक पॉजिटिव वाइब दे रहा है और एक नेगेटिव दे रहा है। तो गेज जो है वो नेगेटिव वाइब देता है, नेगेटिव सेंटेंसेस में हम देखते हैं कि घूर कर देख रहा है, और स्टेयर देख रहा है हमें, तो वो पॉजिटिव वाइब दे रहा है। सेकंड है शाइन। शाइन का मतलब चमकना होता है, ग्लेयर का मतलब दहकना होता है, ठीक है। देखिए शाइन जो है वो पॉजिटिव इम्पैक्ट दे रहा है हमें, पॉजिटिव सेंटेंसेस में यूज़ करेंगे, जबकि ग्लेयर यानी कि जैसे आग का दहकना, तो ये नेगेटिव मीनिंग में आ जाता है। नेक्स्ट वन हॉर्ड। हॉर्ड मीन्स ज़ख़ीरा अंदोज़ी करना, और कलेक्ट का मतलब भी इकट्ठा करना, ज़ख़ीरा अंदोज़ी करना भी इकट्ठा करना ही होता है। लेकिन हॉर्ड का वर्ड जो है वो हम नेगेटिव सेंटेंसेस में यूज़ करते हैं, ठीक है, और कलेक्ट का वर्ड किस में यूज़ करते हैं, पॉजिटिव सेंटेंसेस में यूज़ करते हैं। क्वेश्चन डी रिलेटेड टू दिस connotation an activity, use the words given in activity C इन सेंटेंस ऑफ योर ओन। वो कह रहे हैं यहाँ पर एक्टिविटी सी के अंदर जितने भी ये वर्ड्स दिए गए हैं इनको सेंटेंसेस में इस्तेमाल करें, ठीक है। फर्स्ट वन इज़ गेज। यू शुड नॉट गेजर। देखिए यहाँ पर नेगेटिव इम्पैक्ट दे रहा था ना वो, तो यहाँ पर क्या मना किया जा रहा है कि आप घूर कर उसको ना देखो। स्टेयर देखना। इन आवर बिजी लाइफ वी हैव नो टाइम टू स्टैंड एंड स्टेयर एट द ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेचर। नेक्स्ट वन इज़ शाइन। शाइन पॉजिटिव इम्पैक्ट दे रहा है, द स्टार्स आर शाइनिंग द स्काई, ठीक है। ग्लेयर, द फ्लेम्स वर ग्लेयरिंग इन हिज हाउस, नेगेटिव इम्पैक्ट दे रहा है। हॉर्ड, ज़ख़ीरा अंदोज़ी करना, हॉर्डिंग इज़ प्रोहिबिटेड इन इस्लाम। देखें ज़ख़ीरा अंदोज़ी जो है वो इस्लाम में मना है, यानी कि बुरी चीज़ है ना, तो नेगेटिव इम्पैक्ट दे रहा है यहाँ पर। कलेक्ट, बीज कलेक्ट हनी फ्रॉम फ्लावर्स। शहद की मक्खियाँ जो है वो फूलों से अपना हनी जो है वो तैयार करती हैं, शहद को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ ग्रामर। व्हाट इज़ ग्रामर? फर्स्ट वन इज़ कलेक्टिव नाउन। इसके अंदर हम कलेक्टिव नाउन को देखेंगे। डेफिनेशन है अ सिंगुलर नाउन सच एज कमेटी और टीम दैट रेफर्स टू अ ग्रुप ऑफ पीपल, एनिमल्स और थिंग्स इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। बेटा कलेक्टिव नाउन ऐसा वर्ड जिसमें हम एक लफ्ज़ को इस्तेमाल करते हुए ग्रुप को रिप्रेजेंट कर दे, यानी कि ज़्यादा सारी चीज़ों को, ज़्यादा सारे लोगों को, ज़्यादा सारे एनिमल्स को हम एक ही वर्ड से रिप्रेजेंट कर दे, तो वो क्या होते हैं, वो कलेक्टिव नाउन होते हैं। जैसा कि क्राउड। क्राउड का जो वर्ड है वो लार्ज नंबर ऑफ डैफोडिल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, या लार्ज नंबर ऑफ पीपल को भी रिप्रेजेंट कर सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ दिए गए हैं नाउन, कलेक्टिव नाउन, हमने बताना है एक्ट ए के अंदर कि उनको हम किस वर्ड से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कि कलेक्शन ऑफ शिप, ठीक है, जहाज़ों की जो कलेक्शन है उसको हम किस वर्ड से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कोई एक वर्ड यूज़ करेंगे हम कलेक्टिव नाउन के तौर पे। तो बेटा यहाँ पर फ्लीट का जो वर्ड है वो शिप के लिए यूज़ किया जाता है, कलेक्शन ऑफ शिप्स के लिए, कि जब ज़्यादा सारी शिप इकट्ठी हो जाएं तो हम उनको क्या कहते हैं, फ्लीट, ठीक है। कलेक्शन ऑफ सिंगर, कि ज़्यादा सारे सिंगर्स जब इकट्ठे हो जाए तो हम उनको क्या नाम देंगे, हम उनको बैंड, एक लफ्ज़ से रिप्रेजेंट करना है ना, तो यहाँ पर हम बैंड कहेंगे उनको। सी कलेक्शन ऑफ कैटल, मवेशी इकट्ठे हो जाएं तो हम उनको क्या कहेंगे, हम उनको हर्ड कह देंगे, HERD हर्ड, ठीक है। डी कलेक्शन ऑफ सोल्जर्स, जब काफ़ी ज़्यादा सिपाही इकट्ठे हो जाएं या सोल्जर्स इकट्ठे हो जाएं, हम उनको क्या किस वर्ड से रिप्रेजेंट करेंगे, हम उसको आर्मी कह देंगे। आर्मी का वर्ड जब हम बोलते हैं तो हम सिर्फ एक शख्स की बात नहीं कर रहे होते, हम बहुत ज़्यादा लोगों की बात कर रहे होते हैं, ठीक है। हाँ जी, क्वेश्चन बी अंडरलाइन प्रपोजिशन ऑफ प्लेस इन द पोएम। प्रपोजिशन ऑफ प्लेस की बेटा हम पीछे बात कर चुके हैं पिछले चैप्टर्स के अंदर। हम यहाँ पर उन्होंने कहा कि आपने जितनी भी पोएम के अंदर प्रपोजिशन ऑफ प्लेस यूज़ की गई हैं आप उनको यहाँ पर लिखें। सो यहाँ पर आंसर दिया गया ऑन, ओवर, बिसाइड, बीनीथ, इन, अलोंग एंड अपन। ये सारी प्रपोजिशन ऑफ प्लेस जो है ये यहाँ पर यूज़ की गई हैं पोएम के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन डी यूज़ द फॉलोइंग प्रपोजिशन इन सेंटेंसेज ऑफ योर ओन। यहाँ पर कुछ दी गई हैं प्रपोजिशंस, उन्होंने कहा कि इन तमाम प्रपोजिशंस को
आप अपने सेंटेंसेस में यूज़ करें, कैसे करेंगे? फर्स्ट वन इज़ बिहाइंड, बिहाइंड का मतलब होता है पीछे, ही वॉज स्टैंडिंग बिहाइंड द वॉल। नेक्स्ट वन बिसाइड, बिसाइड का मतलब होता है साथ में, द डॉग इज सिटिंग बिसाइड द मास्टर। नेक्स्ट टू यानी कि अगला, ही इज़ रिजाइडिंग नेक्स्ट टू माई डोर, वो मेरे घर के साथ वाले घर में रहता है। अंडर नीचे, द हॉर्स वॉज स्टैंडिंग अंडर द ट्रीज, घोड़ा जो है वो दरख्तों के नीचे खड़ा है। ओवर पर या ऊपर, दे हैव बीन सेंट ओवर एन आवर, अलोंग साथ साथ, द चिल्ड्रन वर स्टैंडिंग अलोंग द रोड, बच्चे जो है वो सड़क के साथ साथ खड़े थे। अक्रॉस पार, द बोट्स वर इन रोड अक्रॉस द रिवर, जो कश्तियाँ हैं वो चलाता हुआ मल्लाह जो है उसको दरिया के पार चला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन also related to the grammar, conjunction. What is conjunction? Conjunction joins words and sentences. हाँ जी, कोई भी दो वर्ड्स या दो सेंटेंसेस को आपस में किसी एक चीज़ के ज़रिए जब मिला दिया जाए, उनको इकट्ठा कर दिया जाए, वो कंजंक्शन कहलाता है। ठीक है, जैसा कि देयर आर टू काइंड्स ऑफ कंजंक्शन, यहाँ पर दो तरह की कंजंक्शन दी गई हैं। फर्स्ट वन इज़ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन एंड सेकंड वन इज़ सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का हम फंक्शन देख लेते हैं। दीज कंजंक्शन जॉइन सेंटेंसेस ऑफ इक्वल रैंक, दो एक जैसे बराबर किस्म के जो सेंटेंसेस होते हैं उनको जब किसी एक वर्ड के ज़रिए मिला दिया जाए तो वो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहलाता है। एग्जांपल्स दी गई हैं, कौन कौन सी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हो सकती हैं? बट, और, नॉर, ईदर, अल्सो, हाउएवर, ओनली, सो एंड हेंस। नेक्स्ट इज सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, ये क्या होती है, इनका फंक्शन क्या है? दिस कंजंक्शन जॉइंट सेंटेंसेस वन ऑफ विच इज़ डिपेंडेंट ऑन द अदर, कोई एक सेंटेंस जो अपने अगले सेंटेंस के ऊपर डिपेंड कर रहा हो, इन्हसार हो उसका उसके ऊपर, उन वर्ड्स को आपस में मिलाने के लिए, उन सेंटेंसेस को आपस में मिलाने के लिए हम सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। एग्जांपल्स हैं बिकॉज, दैट, वाइल, अनलेस, एज, व्हेन, सिंस, इफ एंड दो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ई रिलेटेड टू द कंजंक्शन, फिल इन द ब्लैंक विद अप्रोप्रिएट कंजंक्शन। ये यहाँ पर कुछ फिल इन द ब्लैंक दी गई हैं, इनको हमने कंजंक्शन से फिल करना है। ही रेन फास्ट, वो तेज़ी से दौड़ा। डैश, ही मिस्ड द ट्रेन, बट, लेकिन फिर भी उसकी ट्रेन क्या हो गई? मिस हो गई। तो यहाँ पर क्या वर्ड आएगा? बट का आएगा। ठीक है, ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। वेट, डैश, आई रिटर्न, वेट अनलेस आई रिटर्न। ठीक है, ये सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का सेंटेंस है। वर्क हार्ड, डैश, यू शुड फेल, मेहनत करो, लेस्ट यू शुड फेल, यहाँ पर लेस्ट का वर्ड आएगा कि कम अज़ कम और इतनी मेहनत करो कि आप फेल ना हो। आई डिड नॉट कम, यू डिड नॉट इन्वाइट मी, मैं नहीं आऊँगा क्योंकि, यहाँ पे क्या वर्ड इस्तेमाल करेंगे हम? बिकॉज का वर्ड इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि आपने मुझे नहीं बुलाया। देखें, पहला सेंटेंस जो है आई डिड नॉट कम, ये किस चीज़ पर डिपेंड कर रहा है? ये अगले सेंटेंस के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे? सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यानी कि बिकॉज को इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, यू विल गेट प्राइज एज यू डिज़र्व, यहाँ पे क्या आएगा? एज का वर्ड आएगा, क्योंकि ये सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। इसमें भी पहले वाला जो सेंटेंस है वो दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन एफ, also related to the conjunction, use any 5 coordinating conjunction and any 5 subordinating conjunction in sentences of your own। यहाँ पर हमने coordinating और मतलब subordinating conjunction के कोई से भी 5 sentences बनाने हैं। The sun appeared and the snow melted, he should work hard or he will fail। देखिए यहाँ पर and जो है वो conjunction है, यहाँ पर और जो है ये conjunction को यूज़ शो कर रहा है। ही इज़ पुअर बट ही इज़ वेरी ऑनेस्ट, यहाँ पर देखें बट का जो वर्ड है वो कंजंक्शन के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। ही इज़ वेरी रिच स्टिल ही इज़ नॉट कंटेंटेड, स्टिल का वर्ड जो है वो कंजंक्शन है। ही मेड अ मिसचीफ सो ही वॉज पनिश्ड, यहाँ पर सो का वर्ड जो है वो कंजंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूज़ ऑफ प्रेजेंट एंड पास्ट पार्टिसिपल्स, यहाँ पर हमने बेटा पास्ट और प्रेजेंट पार्टिसिपल्स को यूज़ करना है। व्हाट इज़ पार्टिसिपल? पार्टिसिपल इज़ अ वर्ब फॉर्म यूज्ड एज एन एडजेक्टिव टू मॉडिफाई नाउन और प्रोनाउन। हाँ जी,
क्या होता है पार्टिसिपल? एक ऐसी चीज़ होती है, ये एक ऐसा वर्ड होता है जो कि किसी भी चीज़, किसी भी नाउन की क्वालिटी को या उसके क्या कर रहा होता है, नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी को इन्हेंस कर रहा होता है, ठीक है। जैसा कि दो टाइप्स हैं इसकी, प्रेजेंट और पास्ट। फर्स्ट वन इज प्रेजेंट पार्टिसिपल, ऑल द प्रेजेंट पार्टिसिपल्स एंड इन इंग, ING, ठीक है। जितने भी प्रेजेंट पार्टिसिपल्स होते हैं उनको हम ING से एंड करते हैं। जैसे कि लाफ वर्ब है और इसके साथ हम एंड पे क्या लगा देंगे, ING, तो ये क्या बन गया, प्रेजेंट पार्टिसिपल बन गया। फॉल एक वर्ब है, इसके साथ हम ING का वर्ड इस्तेमाल करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है स्टिंग। स्टिंग का जो वर्ड है ये बेटा वर्ब है और आगे ING का जो वर्ड है ये इसको क्या बना रहा है, पार्टिसिपल बना रहा है। कौन सा पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल बना रहा है, क्योंकि हम इसके साथ क्या इस्तेमाल करें, ING यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट इज़ पास्ट पार्टिसिपल। बेटा पास्ट पार्टिसिपल वो होते हैं जब हम वर्ब के साथ ED लगा दें लास्ट पे, ठीक है। जैसे कि जैसे कि यहाँ पर टायर का वर्ड है तो टायर के साथ हमने यहाँ पे क्या लगा दिया, ED, यानी कि टायर्ड, ठीक है। तो ये क्या बन गया, पास्ट पार्टिसिपल। इंजर्ड प्लेयर, इंजर एक वर्ब है उसके साथ हमने ED लगा दिया तो क्या बन गया, इंजर्ड बन गया, यानी कि पास्ट पार्टिसिपल बन गया। क्रैक, ठीक है, वर्ब है, एंड पे क्या लगा दिया, ED लगा दिया तो क्या बन गया, पास्ट पार्टिसिपल बन गया। एक एक्टिविटी है इसी से रिलेटेड, हम देख लेते हैं। प्रेजेंट और पास्ट पार्टिसिपल्स को हमने यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक में लिखना है। फर्स्ट वन इज ही वॉज सो शॉक्ड आफ्टर द एक्सीडेंट दैट ही कुड नॉट स्पीक। तो देखें यहाँ पे शॉक के साथ क्या लगा दिया हमने, ED का वर्ड यूज़ कर दिया है तो ये कौन सा पार्टिसिपल है, ये पास्ट पार्टिसिपल है, ठीक है। द गैलोपिंग हॉर्स स्केयर्ड द चाइल्ड। देखिए यहाँ पे गैलोपिंग का वर्ड यूज़ हो रहा है तो ये कौन सा प्रेजेंट है। आई डोंट वॉन्ट दैट बर्नट रोस्ट, ठीक है। यहाँ पे क्या हमने किया है कि यहाँ पर देखें प्रेजेंट पार्टिसिपल है क्योंकि हमने यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म जो है वो यूज़ किया है। डोंट बी फ्राइटेंड दैट द डॉग डजंट बाइट। फ्राइटन के साथ ED का वर्ड लगा दिया तो ये पास्ट पार्टिसिपल है, ठीक है। द लॉरी वॉज कैरिंग स्टोलन गुड्स। यहाँ पे स्टोलन यानी कि आ गया तो यहाँ पे और क्या आया, वॉज का वर्ड आ गया तो ये पास्ट पार्टिसिपल है। एवरीबडी वॉज एक्साइटेड प्रिपेयरिंग द थिंग्स फॉर द ट्रिप। तो देखें यहाँ पर एक्साइटेड का वर्ड आ गया और वॉज है तो हमें क्या बता रहा है ये कि पास्ट है। इफ़ द चिल्ड्रन आर बोर्ड वाई डोंट यू टेक देम टू द पार्क। तो देखें यहाँ पे बोर्ड यानी कि क्या है, ED का वर्ड यूज़ हो गया तो ये पास्ट है। स्टूडेंट्स, देयर इज़ एन एक्टिविटी रिलेटेड टू द participles. Make 5 sentences using present participles and 5 sentences using past participles. Present और past दोनों के 5-5 sentences बनाने हैं. So the first one is present participle. The story was very interesting. The journey was quite exciting. Your reply is rather amusing. The lecture was boring. We found her sleeping. Next one is past participle का यूज़ करते हुए sentences बनाने हैं. First one, give the patient boiled water. The house is locked. She felt encouraged. I got a house constructed. He had his shoes repaired. ठीक है. आई होप बेटा आपको इस लेक्चर की अच्छी तरह समझ आ गई होगी। इस लेक्चर के अंदर बेटा जितने भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं आपने उनके स्पेलिंग्स को अच्छे तरीके से याद करना है, उनकी प्रोनाउंसिएशन को, वोकेबलरी को, जितनी भी हमने ग्रामर की है आपने साथ साथ उनकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। और जितने भी सेंटेंसेस हैं उनको अच्छे तरीके से देखना है, इस अपने सेंटेंसेस में अपने तौर पे भी प्रैक्टिस करनी है, ख़ुद से बनाने की कोशिश करनी है आपने। बच्चों, आपके लिए हर मज़मून की वीडियोस इसी YouTube चैनल पर दस्तयाब हैं। आप अपनी पढ़ाई शुरू कर सकते हैं। अगर आपको वीडियोस पसंद आएँ तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आप आने वाली हर वीडियो से आगाह रहें। शुक्रिया।